Nani is also joined with us. COVID-19 vaccine has come and now it has been 2 weeks and we have vaccinated almost 40 lakh people in these 14-15 days. So how do you see this achievement? How is the drive going and how important is the role of vaccination when we are talking about containing the disease and preventing the spread further? This is strongest weapon for controlling this pandemic, which has killed more than 20 lakh people all over the world and more than 1.5 lakhs in India. So we have already imbibed three: social distancing, mask, and hand sanitization. That has helped, but the pandemic is still quite away, from being eradicated. So this COVID vaccine, which has been developed over a record period of time of 10 months, and currently two vaccines are there. One is Covaxin and other is Covishield. Through you, I want to apprise the people of the myths which have been around. Both the vaccines are absolutely safe. That Covaxin is a killed viral vaccine where the virus is not live. And the other vaccine, which is Covishield, which is made by Oxford in UK and made by AstraZeneca, that vaccine is also uses a very safe adenovirus, chimpanzee's virus. Both vaccines are safe. Other thing is that the efficacy, people are saying that it is not efficacy. Lots of myths are going around. It is efficacious to the tune of 70 to 9%. Third thing is that it's absolutely safe. That Covaxin phase 1 trial which has been conducted, we saw that there were only 5% cases got local pain, 2 to 3% of the people who got mild fever or malaise or headache. These were the only side effects of these vaccines which are there. Other thing is that these vaccines, when given, do not provide protection right from the day one. That should be understood. The protection comes only after 40 days. Other thing I want to say that there has been myth going around that people who have allergies should not take this vaccine. This is absolutely incorrect. 40% of the adult population have allergic rhinitis. 5 to 10% of people have asthma. A small percentage have skin allergies, eye allergies. These patients don't have to worry about the vaccination. This is absolutely safe for them. Only people who have had some kind of anaphylaxis, that is life-threatening severe reaction to vaccines, or some food materials in the past, they should inform the healthcare workers that this vaccine can be done. Other myth which is going around is blood thinners. A large proportion of the population taking blood thinners for their prevention of cardiac diseases, which like aspirin and clopidogrel. That myth was going around that these patients should not take vaccine. This is also absolutely incorrect. The COVID vaccine is just like a thin injection which is given like a flu shot or any other vaccine which is given. Only patients who have got a serious clotting disorder like hemophilia or those who are on anticoagulant, they should be little careful with it and they should check with their doctor. They may form a little bit of collection of blood, but that is also not absolute contraindication. So summarizing it, that COVID vaccination is a weapon with us which can lead to finishing of this pandemic. So far, as many as 236 candidate vaccines are in the process of development. So many have finished their phase 3 trial. 2 vaccines are currently available, but more are likely to come. It is at least effective for a period of 5 to 6 months that we know. We don't know the long duration of effectiveness, but through you, I want to tell the public, even those people who have got rheumatic diseases or those who are on chemotherapy, those who have diabetes, hypertension, blood pressure, and those who are on any kind of treatment, there is absolutely no contraindication. Only 3 contraindications are there. One, it is not yet approved for children below 18 years of age. Second, the pregnant mothers, it has not been tested, so they should not take. The lactating mothers, those mothers who are feeding their babies with milk, they should not take.
there's absolutely no contraindication. It is a historic event. It is a mass movement, and India government has all the credit of bringing it fast and free to all the people. So my advice would be to please come forward. Don't be hesitant. It is absolutely safe, and this is a remedy. बात करें डॉक्टर जीसी खिल्लानी, आपने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से इसकी सेफ्टी, ये सेफ है, लोगों के जहन में बात बैठ जानी चाहिए। इस पर और आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक का जो अभियान चला है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? आपको लगता है कि इसकी गति जो है टीकाकरण की और बढ़ाने की जरूरत है, और इसके लिए और कुछ इसमें किया भी जा रहा है? कितना सफल मानते हैं इसको अब तक? 21 जनवरी को जी लैंसेट, जो कि दुनिया का मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नल है, उसमें इसके सेफ्टी डेटा पब्लिश हो गए। तो ये अभी ट्रायल मोड में नहीं है जी। इमरजेंसी ऑथराइजेशन इसको मिला है, और सारी जो वैक्सीन हैं सारी दुनिया में है, सबको भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिला है। कोवैक्सीन एक किल्ड वैक्सीन है जिसमें वायरस लाइव नहीं है। वायरस किसी तरह से भी किसी तरह की बीमारी नहीं कर सकता। जैसे इन्होंने पूछा था कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस है और मिथोट्रेक्सेट पे, और जो जिनसे इम्यूनिटी कम हो जाती है, बल्कि जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको तो जल्दी लेना चाहिए। तो इसमें आप कंसेंट साइन करा रहे हैं, ये एक स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत की जनता 138 करोड़ है, और जो भारत सरकार ने प्लान किया है कि 30 करोड़ को पहले चरण में जो है ना वैक्सीन किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि बहुत इसको एनहांस करने की जरूरत है और अभी इंटीरियर तक जाने की जरूरत है। क्योंकि जो हमारे जो सीरो सर्वे आए हैं बड़े शहरों से, दिल्ली से आया है 51% पॉजिटिव आया है, ये बहुत एक तरह से एनकरेजिंग है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो पूरे भारत का अगर सर्वे करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो 40,000 में जो टेस्ट किया 10% पॉजिटिविटी। तो इसलिए टीकाकरण बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसको एक तरह से जिसको कहते हैं वॉर फुटिंग पे लेने की जरूरत है, और इसको आगे लास्ट माइल जो रीच है वो करने की जरूरत है। Right, and we have received many emails. Dr. Welcome to Total Health. Please go ahead with your question. मेरा एक क्वेश्चन था कि जिन लोगों को कोरोना हो गया है, हमारे घर पे भी हो गया सन को और पेशेंट को, तो उनको वैक्सीन की एंटीबॉडी 3 महीने बाद हम लगाना जरूरी है? वैक्सीन ठीक रहेगा? कब तक रहेगी एंटीबॉडी? जी डॉक्टर खिलनानी, किस तरह से आप इनका क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये, मैं एक्चुअली मिस्ड आउट इन माय तो ये जो एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट होती हैं, एक तो 100% लोगों में नहीं होती वैक्सीन इन्फेक्शन के बाद भी। जो हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है 3 महीने तक एंटीबॉडीज रहती हैं, क्योंकि ये एक मास मूवमेंट है। इसमें ये राइडर नहीं दिया गया है कि जिसको भी कोरोना हो गया है तो उसको वैक्सीन नहीं लगानी है। तो मेरी ये सलाह है कि 2 वजह से आपको ये वैक्सीन लगानी चाहिए। एक तो ये कि हमें एंटीबॉडी टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी टेस्टिंग के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे किट्स होते हैं, बहुत सारी कॉमर्शियल किट्स हैं, उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हमारे पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो आरएनए वायरस होता है ये बहुत नोटोरियस होता है, ये म्यूटेशंस बहुत कॉमन होते हैं। आपने सुना होगा कि यूके स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, कोरियन स्ट्रेन है। तो ये जो स्ट्रेन्स होती हैं ये थोड़ा सा इसमें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट हो जाता है इसमें। पर ये जाना गया है कि ये जो वैक्सीन्स हैं, और ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ये पहला टेस्ट किया है इन्होंने, कि ये जो वैक्सीन्स हैं ये म्यूटेटेड वायरस के लिए भी इफेक्टिव है। ये 2 वजह है कि आपको कोरोना होने के बाद भी वैक्सीन से दूर नहीं जाना, वैक्सीन को लगाना है। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली सेफ है। पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं साहब, मेरी उम्र 65 ईयर है और मैं COPD पेशेंट हूँ और मैं अंडर मेडिकेशन हूँ। मैंने नवंबर में वैक्सीन ली है निमोनिया और फ्लू की। जी।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ये जो अब आज जो वैक्सीन आने वाली है, जो हमें मिलने वाली है, ये मैं लगा सकता हूँ या नहीं? जी डॉक्टर खिल्लानी, क्या आप इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? सवाल है, कॉमन सवाल है। आपको वैक्सीन लगानी चाहिए। ये रिकमेंडेड है कि फ्लू और कोविड वैक्सीन के बीच में 2 हफ्ते का गैप होना अच्छा रहता है। तो आपने तो नवंबर में लगाया है, तो आप बिल्कुल सेफ है। जब भी आपका नंबर बारी आती है, आप प्लीज अपनी वैक्सीन लगा लें। And Dr. Khilnani, there is a similar question we have received from Dr. Hansraj. He wants to know if a person has received plasma therapy and was infected with COVID and has got the plasma therapy. So, will the vaccination be effective on such person? Yes, it will be effective, and I have already narrated the absolute contraindication to that. So, plasma therapy gives antibodies to the patient which will be short-lived. It's not an active immunization. It is called passive immunization. So, plasma therapy is given to take care of the emergency situation which he has received, thankfully, and he should not think that vaccine is not useful for him. Especially if the 3 months have passed by after this corona infection, he should take vaccine. जी डॉक्टर खिलानी, कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये वैक्सीन तैयार की गई, आपने बहुत ही विस्तार से इसके विषय में जानकारी दी कि किस तरह से ये सेफ है। बावजूद उसके तमाम सारे ईमेल्स आ रहे हैं कि कैसे ये विश्वास लोग करें कि ये वैक्सीन सेफ है। तो एक बार थोड़ा कम शब्दों में बताने की कोशिश करिएगा कि ये वैक्सीन सेफ कैसे है। दूसरा, एक ये लोग जानना चाहते हैं कि कितने समय तक इसका असर रहेगा वैक्सीन का लगवाने के बाद। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जो ये कोवैक्सीन तैयार हुई है, इसके बारे में बताता हूँ। और आपको सबसे पहले ये माइस में, मतलब चूहों में मान लीजिए, ये टेस्ट किया जाता है। उसमें टेस्ट की गई, उसके बाद ये मंकीज में टेस्ट की गई। मंकीज में जो है ना, वो उनको वैक्सीन दी गई डिफरेंट डोजेजेस में, और उसके बाद उनके नाक में जो है ना वायरस डाला गया और देखा गया कि उनको कोविड हुआ कि नहीं। तो ये पता चला कि जिन मंकीज को वैक्सीन नहीं दी गई थी, उनको निमोनिया हुआ, और उनको वो जो लंग को जब स्टडी किया हिस्टोलॉजी में, तो उनको निमोनिया हुआ था। और जिन मंकीज को नहीं दिया गया था, उसको जो है, जिसको वैक्सीन दिया गया था, उनको निमोनिया नहीं हुआ और वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये तो हुआ मंकीज में एफिकेसी जी। उसके बाद जो फेज 1 ट्रायल है, जो इसका मैंने जिक्र किया था कि 21 जनवरी को वो पब्लिश भी हो गई, 375 लोगों में, वॉलंटियर्स में ये वैक्सीन दी गई और डिफरेंट डोजेज में, और उनको फॉलो किया गया 3 महीने तक। और उनको ये टेस्ट किया गया कि उनकी जो शरीर में एंटीबॉडीज बनी कि नहीं बनी, कितनी हद तक बनी, कितनी देर तक रही, और उनको क्या क्या साइड इफेक्ट हुए। तो उनको जो साइड इफेक्ट हुए उसकी एग्जैक्ट परसेंटेज मैं बताता हूँ। 5% लोगों को लोकल पेन हुआ, रेडनेस या दर्द, जो जहाँ पर भी इंजेक्शन लगता है, मुझे भी लगा था, तो मुझे ढूंढना पड़ रहा था कि मुझे लगा कि नहीं लगा, इतना कम दर्द होता है उससे। 2% लोगों में हुआ बुखार और माइल्जिया, जिसको कहते हैं ना मसल बॉडी एक होता है या मैलेज होता है। 3% लोगों को तो हल्की सी वीकनेस हुई, और ये जो है, और 3% लोगों को सिर दर्द हुआ। तो ये एक माइल्ड सी जो साइड इफेक्ट है उनको रही, और इन लोगों को फॉलो किया गया प्रॉपरली, और देखा गया कि बिल्कुल सेफ है। और दूसरा ये कि आपको ये समझना है कि वैक्सीन कई तरह की होती है। ये एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जिसमें वायरस बिल्कुल इनएक्टिव है। इसके साथ इसकी टेक्निकल चीजें होती है कि टॉल लाइक रिसेप्टर वगैरह डालते हैं इसमें, सो दैट इम्यूनिटी बरकरार रहे। जो दूसरा सवाल है कि इम्यूनिटी कितने समय तक रहती है जी। एक होती है कि कॉमन सेंस, जो आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखते हो। एक होता है वैज्ञानिक प्रमाण जी। कॉमन सेंस की बात करें तो देयर आर वैक्सीन्स जिनकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है, जैसे पोलियोमाइलाइटिस की लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है। स्मॉल पॉक्स भी इसी वजह से इरेडिकेट हो गया। इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन होती है वो क्योंकि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बहुत होता है, इसलिए हर साल उसको लगाना पड़ता है। ये जो कोरोना की वैक्सीन है, इसका हमें जो तजुर्बा है, जो वैज्ञानिक प्रमाण है, हमारे पास 3 से 5 महीने का ही है कि इसकी एंटीबॉडीज
बरकरार रहती हैं, उसके बाद कम होने लग जाती हैं। लेकिन हमारे शरीर में एक मेमोरी होती है जी, याददाश्त होती है, जैसे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह आपको बहुत ब्यूटीफुली समझा रहे थे, वो याददाश्त रहती है। तो उस वजह से ये होता है कि जब एंटीबॉडीज होती हैं, अगर एंटीबॉडीज कम भी हो गई, लेकिन जो मेमोरी सेल्स हैं वो याद रखते हैं, जैसे ही उसके ऊपर वायरस का अटैक होगा वो इमीडिएटली एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये कि आज तक हमें ये पता है कि 3 से 5 महीने तक कम से कम इसकी इम्यूनिटी रहती है। इसकी एफिकेसी जो ट्रायल मोड में है वो 70 से 90% की है जी, और अगर जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल लगाई जाती है म्यूटेशंस की वजह से, ये कि कोरोना वैक्सीन को अगर 1 साल के बाद रिपीट करना होगा या नहीं करना होगा, इसका उत्तर दुनिया में किसी के पास नहीं है। जी। तो आज की नीड ऑफ द आवर इज आज जो वैक्सीन है इसको लगाएं और इंतजार करें कि अगले साल हमें क्या दूसरी वैक्सीन लगानी पड़ेगी या इसकी वैक्सीन की लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होगी, ये किसी को भी नहीं पता। जी बिल्कुल। डॉक्टर गुरटू, कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, these vaccines are affordable to the common man? And third question is, there are 57 million people who are associated with having any different types of mental illness, depression. For them, will it not be having any side effects, sir? Right. Thank you. Dr. G. C. Khilnani, please take this query. Yeah, so the pain is a subjective phenomenon, you know. कई किसी लोगों को सुई लगती है, उनको पता भी नहीं लगता, कई लोग चिल्लाते हैं, कई लोग रोते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सॉफ्ट स्किन में ज्यादा दर्द होता है, लेकिन बहुत बहुत हल्का सा दर्द होता है। इसमें कोई, क्योंकि मैं खुद लगवा चुका हूँ, सब लोग लगवा चुके हैं, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। और सॉफ्ट स्किन की कोई डेफिनेशन मुझे तो पता नहीं है, लेकिन उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। जहां तक मेंटल इलनेस या डिप्रेशन या इसका संबंध है, उससे कोई इसका लेना देना नहीं है, उन सबको वैक्सीन लगाना चाहिए। एक मैं और चीज बोलना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ मी, अबाउट द अल्कोहल इनटेक। ये बहुत बड़ा अल्कोहल लेना एक सोशल चीज होती है, और अगर हम ये कह देंगे कि अल्कोहल नहीं लेना चाहिए तो लोग शायद वैक्सीन लेने से भी कतराएंगे। लेकिन जो अल्कोहल इन मॉडरेशन होता है जी, वो इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं करता। तो मॉडरेशन की डेफिनेशन होती है वो ये इस फोरम पे मैं नहीं उस पे डाइवर्ज करना चाहूंगा। Right. लेकिन एक्सेस ऑफ अल्कोहल जो होता है, बहुत जो अब्यूज ऑफ अल्कोहल होता है, वो इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। तो ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन उनकी जो वैक्सीन की जो एफिकेसी है Right. वो कम हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल को अब्यूज करते हैं। जो मॉडरेशन में अल्कोहल है वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। यू कैन कंटिन्यू टेकिंग योर अल्कोहल इफ यू आर टेकिंग। तो इस वजह से